Welcome to session. So in this session, we're going to do special equation part 1. So special equation, if you remember in the last session, we have discussed linear simultaneous equation, where we have learned one thing, that if you want to solve an equation in two variable, you required two equations. If equation is in three variable, you'll be required three equation and so on. So it means like the number of variables to solve, you'll require the same number of equations. And in a special equation, this is the case that here you will be given single equation, like this is the equation, and there, so for this equation there is a infinite possibilities, and like if you draw the graph, I have teach you in the last session how to draw the graph of these equations. So if you draw the graph like this is, so if you draw the graph of this equation, so this will be 4, this will be 6. So you can see there are infinite, this goes till infinite, this goes till infinite. So there are infinite values on this line that will satisfy this equation. But with some restrictions, with some conditions, we can find a definite solution, like find the positive integer solution. So you can see here positive solutions are only in between this, है ना, इस रेंज में सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन है, इसके बाहर सारे तुम्हारे, यहाँ पर देखो y नेगेटिव है, यहाँ पर तुम्हारा x नेगेटिव है. So these are the, this is the range where only positive solution exists. So this type of constraints will be given and we need to figure out the solution of the given equation. Now let's see. So these are the different type of special equations that can be there. This is like that we already discussed, and this is the ax plus by minus c, and this is also x square minus y square equals to n. This is the form 1 by x plus 1 by, and this is also. So these are the type of the equations, and we're going to discuss in detail how to deal with this type of equations, how to find the solution, and what type of questions can be asked in the examination. Okay, so let's first discuss this equation, ax plus by equals to c. So this is a linear equation in two variable, and अब इसके सॉल्यूशन तो देखो इनफाइनाइट पॉसिबल होंगे, है ना. अगर इस पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसका ग्राफ अभी मैंने दिखाया, अगर a और b c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस रेंज में आएगा, एंड दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे. बट विद लाइक, अब देखो कंस्ट्रेंट्स इस टाइप के हो सकते हैं. एक तो हो सकता है फाइंड द होल नंबर्स, फाइंड द होल नंबर सॉल्यूशन, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन. होल नंबर और नॉन नेगेटिव तुम्हारा सेम होता है. फाइंड द सॉल्यूशन सच दैट x and y आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो इन दिस रेंज यू कैन सी दीज आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. फाइंड द नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन. तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स देखो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे ना. यहाँ पर देखो इनफाइनाइट है. अब अगर देखो लाइक मैं दूसरा लाइक सपोज तुम्हारा इस टाइप का लाइन हो, सपोज दिस टाइप ऑफ, है ना, सपोज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हो, तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारी लाइक नॉट दिस वन, ये वाला अगर हम चेक करें ना, इसमें देखो नेगेटिव लिमिटेड है. जैसे यहाँ पर पॉजिटिव लिमिटेड थे वैसे यहाँ पर नेगेटिव सॉल्यूशन लिमिटेड है, और पॉजिटिव सॉल्यूशन लाइक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सॉल्यूशन इनफाइनाइट है. तो दिस इज द वे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन. तो लाइक अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, जीरो वाला. स्पेसिफिक लिमिट दी होगी सच दैट लाइक x इज ग्रेटर देन 4, y इज ग्रेटर देन सम नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ दीज इज ग्रेटर देन सम नंबर. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, ठीक है, सम रैंडम कंडीशन, सम स्पेसिफिक, and these are the basic type of questions. So let's discuss these conditions and questions. I hope this is clear. So we're going to discuss this, and these are the constraints with which we're going to solve these questions. So before you start solving these equation, there are few things that we need to take in care of, and I will explain in the detail. So like first write the equation in reducible form. Reducible form से मतलब ये है, suppose this is 3x plus 9y equals to, let's say, 63. This equation is written. So first you need to make sure a और b जो तुम्हारे हैं, a और b का, a और b में कुछ कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 होना चाहिए. यहाँ पर देखो इनका HCF 1 है, नहीं है, तो जो कॉमन टर्म है उसे कैंसिल आउट करो. तो कॉमन टर्म है 3, तो इधर भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट इज 3y. नाउ दिस इज द इक्वेशन. अब तुम्हें अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है. तो पहला स्टेप यही है कि अगर a और b में कुछ कॉमन है, रिड्यूस दैट थिंग, रिमूव दैट पार्ट. इफ xy स्टिल हैव अ कॉमन फैक्टर आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू लोवेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म, द इक्वेशन विल नो लॉन्गर इंटीजर सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि लाइक सपोज
लेट मी जस्ट, अब ये देखो लाइक सपोज इनमें अभी कुछ कॉमन है, लेट्स से 6, लेट्स से नॉट 6, लेट्स मेक इट 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 21, सपोज दिस इज द इक्वेशन। आई होप ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया था। पहला एग्जांपल जो भी कॉमन है उसे हटा दो, ठीक है, देन सॉल्यूशन तुम्हें स्टार्ट करना है। अब ये दूसरा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इस टाइप ऑफ, सपोज दिस इज द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन देखो तुम, इन दोनों में क्या, इनका HCF 2 है ना, 2 इज द कॉमन, बट कैन यू कैंसिल आउट 2? 2 कैंसिल आउट कर सकते हो? नहीं, दिस विल बी 21/2 x प्लस 3y 21/2। फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन नॉट, देर इज नो इंटीजर सॉल्यूशन, है ना, देर इज नो इंटीजर सॉल्यूशन, फाइन। तो पहले तो तुम्हें यू हैव टू मेक श्योर दैट ए और बी का HCF 1 है, ए और बी का HCF 1 है। अगर HCF 1 नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो, एंड इन दैट बिटवीन, लाइक जैसे यहाँ पर हमने ट्राई किया इनका HCF 1 करे तो ये नॉन इंटीजर आ गया। इफ दिस इज नॉन इंटीजर सो देर आर नो इंटीजर सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दैट गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये फाइन, तो ये वही बात को एक्सप्लेन कर रहा है, को प्राइम की बात कर रहा है, को प्राइम जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। इफ इक्वेशन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले चलो इसको डिस्कस करते हैं और इसका भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम इस इक्वेशन को, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 149। अब देखो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो y की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, अगर ये टर्म कांस्टेंट है। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज अगर x की वैल्यू में, अब जैसे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन एक हो सकता है कि लाइक ये 0 हो जाए, ये 4 हो जाए, दिस इज सॉल्यूशन, दिख रहा है ना सबको, 4 0। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो इसकी वैल्यू 6 होगी। अब ये भी मैं बताता हूँ, तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एक सॉल्यूशन निकालना होता है, जो स्पेशल इक्वेशन होती है तुम्हें उनका एक सॉल्यूशन लिखना होगा, है ना। तो हमने एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, दैट इज 0.4 सॉल्यूशन है। इसके बाद क्या होगा, ये जो नंबर्स होंगे, जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आएगा, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो इसके साथ वेरी करेगा और ये इसके साथ वेरी करेगा, इसके कोफिशिएंट के साथ और ये इसके कोफिशिएंट के साथ। जैसे ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, अगर सपोज इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा वो 2 से इंक्रीज करेगा। अब मैंने बोला अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों नंबर का x प्लस वाई का सम समझ लो कांस्टेंट है। तो अगर इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। लाइक सपोज अगर मैं लिखता हूँ 4 + 2 = 6, तो अगर मैं 4 को इंक्रीज करता हूँ तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इज इट फाइन? एंड अगर मैं लाइक इसको डिक्रीज करता हूँ, 3 करता हूँ, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेम थिंग गोज हियर, अगर यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, 6 करता हूँ, तो इसको मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा कितने से, 3 से, तो दैट इज -3। तो देखो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। तो अगर मैं पहला सॉल्यूशन 0 और 4 लिखता हूँ तो नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, दिस इज 6, दिस इज -3, तो 6 3 18, 18 - 6 12 आ रहा है। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये 2 से इंक्रीज करता रहेगा, ये -3 से डिक्रीज करता रहेगा। ये सॉल्यूशंस हो गए तुम्हारे, ऐसे करके तुम सारे सॉल्यूशंस लिख सकते हो। देन अगर मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन लिखता हूँ, सपोज मैं ये वाला सॉल्यूशन लिखता हूँ, लेट्स मेक दिस 0 एंड, या फिर इसी में करते हैं इसको, लाइक सपोज इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, अब इसको डिक्रीज करता हूँ। इसको अगर डिक्रीज करूंगा तो इसको 2 से डिक्रीज करोगे 2, एंड इसको 3 से इंक्रीज करोगे। देखो सॉल्यूशन है 3 2 6, 3 2 6 12। फिर इसको डिक्रीज करो, दैट इज 0, एंड इसको इंक्रीज करो, दैट इज 9। नहीं, एक मिनट, इसको 3 से इंक्रीज करेंगे, दैट इज 6, है ना। तो देखो 6 to 12, ये भी सॉल्यूशन आ गया। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हाट इट इज रिटन हियर, दैट अगर ax + by इक्वल्स टू c, ये इक्वेशन है, तो एन इंक्रीज इन x विल कॉज अ डिक्रीज इन y। अगर x को इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कैसे करेगा, इनके कोफिशिएंट्स के साथ। y डिक्रीज करेगा इसके कोफिशिएंट के साथ, x में जो चेंजेस आएगा वो y के कोफिशिएंट के।
आई होप दिस इज क्लियर। अब सॉल्यूशंस करते हैं तो और आइडिया लगेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, ठीक है, ये कि लाइक नो सॉल्यूशन कब केस होगा। सो लेट्स सी दिस इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशंस लिखी है, इसमें क्वेश्चन देखो क्या होगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। 5x, तो x इज 149/5 एंड y इज 149/3 1। तो लाइक ये सपोज 149/5 यहाँ पर है और 149/3 ये है। तो दिस इज द ग्राफ। तो इसमें देखो जनरल तो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी फाइंड द like whole numbers solution, find the solution of this equation such that x and y are whole numbers, and positive integers, xy positive integer, find the solution of the given equation such that x and y are positive integers। देन तुम्हारा क्या बच रहा है, यही दो सॉल्यूशन होंगे। अब ये पता होगा होल नंबर क्या है कि जीरो वाले सॉल्यूशन इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जीरो वाले सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं होंगे। तो दीज टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक दोनों के सॉल्यूशन सेम तरीके से आएंगे, ठीक है। हमें पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर सॉल्यूशन निकालने हैं। 5x बेसिकली इंटीजर सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन पे फोकस करना है क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, निगेटिव सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट है। देखो ऐसी इक्वेशन बनेगी, निगेटिव सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट है, निगेटिव सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है, पॉजिटिव लिमिटेड सॉल्यूशंस, तो उन पे वर्क करते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कैसे फिगर आउट करेंगे। 5x + 3y = 149। अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे, है ना, जो ये चेंज के लिए मैंने एक्सप्लेन किए थे, इससे तुम्हें आइडिया लगा होगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है ना। इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द फर्स्ट सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, देन आगे के सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकल आएंगे। एंड इस क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं। एंड होल नंबर तो सॉल्यूशन का पॉसिबल नहीं है। देखो क्या इसका सॉल्यूशन जीरो हो सकता है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कोई भी वैल्यू x और y जीरो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे और वो सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लो। इफ यू रिमेंबर आई थिंक हमने नंबर्स में भी ये चीज़ की होगी, जो एलसीएम वाले क्वेश्चन थे, जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थी, वहां पर आई थिंक वी हैव डन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो अगर x देखोगे तो x वेरी करेगा 3 से। लाइक अगर सपोज x का पहला वैल्यू 1 है तो दूसरा वैल्यू 4 आएगा, 7 आएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैल्यू कुछ और हो सकता है। अगर y का वैल्यू लोगे तो y का वैल्यू सपोज पहला 2 आता है तो नेक्स्ट 7 आएगा, ऐसे कर करके वैल्यू आएंगे। तो बेटर कौन सा रहेगा, अगर हमें जल्दी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें जो लेना जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है ना। फिर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन आ रहा है, x आ रहा है, x फ्रिक्वेंटली आ रहा है। सो व्हाट विल डू, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा बट थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि x के सॉल्यूशन देखो पास पास हैं एज कंपेयर टू y। तो अब अगर तुम इसे याद करना चाहो, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, तुम ऐसे याद कर सकते हो। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तुम्हारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अनटिल अनलेस वैल्यूज़ बहुत बड़ी हों। तुम्हें क्या करना है कि लाइक जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसको लिखना है, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसके टर्म में, जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसको लिखना है बड़े वाले कोफिशिएंट के टर्म में, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हिट एंड ट्रायल करनी है। तो अगर x की वैल्यू पास पास है, लाइक अगर x की वैल्यू 1, 4, 7, 10, 13 है ना, तो जल्दी जल्दी हम ट्राई कर पाएंगे। 1 ट्राई करेंगे 2, 3, 4 पहुंच जाएंगे। बट अगर ज़्यादा गैप है, लाइक 2 है 7 है, तो अगर मैंने 3 ट्राई किया, 4 ट्राई किया, 5 ट्राई किया, 5, 6, 4 वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी तब जाके 7th मिलेगा। यहाँ पर कितनी करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 करनी पड़ेंगी और थर्ड हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर, लाइक ये मैं तुम्हें न्यूएंस बता रहा हूँ इसको जल्दी सॉल्व करने का। सम टाइम इट विल बी लिटिल हेल्पफुल टू सेव योर टाइम, ठीक है। तो क्या करना है, कोई ज़रूरी नहीं तुम ऐसे करो, कोई भी किसी को भी किसी के टर्म में लिख लो सॉल्यूशन तब भी आ जाएगा, ठीक है। बट व्हाट आई एम टेलिंग, ऑलवेज राइट जिसका कोफिशिएंट लोअर है उसको लिखो, जिसका कोफिशिएंट हाइयर है उसके टर्म में, ठीक है। दैट विल बी अ बेटर थिंग टू डू। अब क्या करूँ,
रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करूँ, अगर मैं इसको 3 से करूँ तो लाइक 3 4 12 3 9, ये आएगा ना, इस फॉर्म का है। तो 49 एंड प्लस 2 - 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस, है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे लिख, ये एक्स होगा सॉरी। तो ये देखो 149 हो जाएगा, जस्ट मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, x की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। तो x को मैं 1 पुट करता हूँ, तो x को मैं अगर 1 पुट करूँगा, x को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, डेट इज 49, ये 0 हो जाएगा, -1 डेट इज 48। तो पहला सॉल्यूशन में मिल गया y इक्वल्स टू 48। दिस इज द वे टू फाइंड द फर्स्ट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके आगे हम सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज, लेट मी जस्ट राइट इट, x इक्वल्स टू 1 एंड 48। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, 48 3 से कितना होता है, 144, 144 प्लस 5 149, ठीक है। अब हमें निकालना है इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं। आई होप टिल हेयर एवरीथिंग इज फाइन। नाउ इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं, जीरो वाला तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ही निकलेगा इसका। अब अगर इसको डिक्रीज करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज करो तो दिस विल बी 4, इसको डिक्रीज करो तो दैट विल बी 43। अब तुम्हें अगर पॉजिटिव, एक तो तरीका है कि ऐसे लिख लो, है ना, बट अगर नंबर बहुत बड़ा है तो ऐसे लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो एक चीज देखो, दिस इज इन एपी, ये जो तुम्हारा है ये एपी में होगा, ये जो तुम्हारा है दिस विल बी इन एपी, दिस विल बी इन एपी, लाइक 48 43 देन 43 38, ये ऐसे करके तुम्हारा एपी में चलेगा। अब हम क्या करते हैं, लाइक एपी का लास्ट टर्म है तुम्हारा 48, एपी का फॉर्मूला आई थिंक nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो दिस इज द फॉर्मूला, और आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला समझ लो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, वेर d इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज लाइक ये जो डिफरेंस है तुम्हारा, a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड n इज द नंबर ऑफ, कौन सा टर्म है, nth टर्म, ठीक है। तो इसको मैं अज्यूम करता हूँ लास्ट टर्म, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट एट अ लाइक, इसको फर्स्ट टर्म, ठीक है, रुको एक मिनट, इसको डिक्रीजिंग एपी है ना, ये डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, तो इसको लेते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म कहीं यहाँ पर होगा, दैट इज अ लास्ट पॉजिटिव नंबर, लास्ट टर्म जो होगा दैट विल बी योर लास्ट पॉजिटिव नंबर, वी डोंट नो व्हाट दिस नंबर इज, सो व्हाट विल डू, विल टेक इट एज अ जीरो, हम क्या करेंगे उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे, उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे, लास्ट इसका जो टर्म होगा वो जीरो होगा, फर्स्ट टर्म 48 है, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -3 -5, -5 है, एंड -1, -5 की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इज 48 इक्वल्स टू n-1 5, 48 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। तो इसको अगर देखो तो लाइक कितना आएगा, 8 9, तो दिस इज 10 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीजर वैल्यू ले लो दैट इज 10, सो 10 विल बी योर आंसर। So there are 10 positive integers for this given equation, ठीक है। तो अदरवाइज तुम इसको डायरेक्टली देखो, लाइक यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग, ये जस्ट मैं तुम्हें बता दिया सोचने का तरीका, लाइक प्रोसेस क्या है, कैसे हो रहा है। अदरवाइज डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, डिवाइड 48 बाय 5 और प्लस 1 इंटीजर वैल्यू, डायरेक्टली यू कैन डू दिस थिंग, बट आई हैव शोन यू व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस इज हैपनिंग, है ना। लाइक अदरवाइज तुम बुक में देखोगे तुम्हें लोग डायरेक्टली बताते होंगे कि जस्ट डू दिस थिंग, 48 को 5 से डिवाइड कर दो और प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट ये फर्स्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब अगर इसके पीछे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर मैं इसके पीछे जाऊं, देखो 3 से डिक्रीज करूंगा तो -2 हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सॉल्यूशन लिखा है 443 एंड देन सॉल्व कर लो, यू हैव टू मेक श्योर कि ये फर्स्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है तुम्हारा। ओके, सो दिस इज क्लियर, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो अगेन दिस इज मल्टीपल, नो,
दिस इज ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ नीदर 9 नॉट 7। तो इसका भी देखो इक्वेशन जो लाइक ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन such that find the solution of the given equation such that x and y are natural numbers are positive integers, ठीक है, natural numbers are positive integers. So what we'll do, let's find the first solution, let's find the first solution. So how we'll find the first solution? For the first solution I have told you, just I have told you that represent lower, जिसका तुम्हारा मल्टीपल लोअर हो उसको रिप्रेजेंट करो जिसका मल्टीपल हायर है उसके टर्म में. So let's write this way, and this is 876 divided by 7. Now 876, I'm just rearranging the equation so that our calculations become easier. So this is 1, this is 2, and 14, that is 5, है ना. So this is 125 and 125, 125, this was 35, one रिमाइंडर रहेगा ना, 1 माइनस 9x अपॉन 7 एंड 125 प्लस 1 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस x, फाइन. 7x इधर 9 हो जाएगा और ये प्लस 1 होके इतना हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सो x की वैल्यू व्हाट आई कैन पुट इट हियर, 7 का मल्टीपल यहाँ पर आना चाहिए, है ना. तो आई कैन पुट, अगर मैं 4 पुट करूँ, इफ आई पुट 4, इफ आई पुट x की वैल्यू 4, सो दिस बिकम्स 8 माइनस 1 माइनस 7, है ना. सो x का 4 आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा. तो डेट इज, लेट्स राइट इट हेयर, x का वैल्यू 4 है. इफ x का वैल्यू 4 है देन दिस इज 125 एंड ये 8 माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 7 आएगा ना. तो माइनस 7 डिवाइड बाई 7 एंड x का वैल्यू इज 4, so this is 120, so this is 120. so first solution that I figure out of this equation, x का वैल्यू तुम्हारा 4 है और y का वैल्यू 120 है. ओके, तो y का वैल्यू 120 है. so this is the first solution, 4 and 120. इसको चेक भी कर ले, कंफर्म भी कर लें कि फर्स्ट सॉल्यूशन इसके आगे लाइक इसके बैक में तो नहीं है कोई नेगेटिव सॉल्यूशन. तो अगर 4 से मैं बैक जाऊंगा तो मुझे कितना कम, 7 डिक्रीज करना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट के हिसाब से, तो दैट इज -3, है ना. तो नेगेटिव सॉल्यूशन. सो दिस इज 4 and 120, सेटिस्फाई भी कर रहा है, सही सॉल्यूशन, कैलकुलेशन वगैरह हमारे मतलब सारे सब कुछ, एवरीथिंग इज राइट. नाउ हमें टोटल नंबर निकालना. एक तो तरीका फिर ऐसे काउंट कर लो, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो लाइक ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा. अब क्या करना है, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो इसका क्या आएगा, इसको डिक्रीज करेंगे. हमेशा देखो डिक्रीज वाले पे फोकस करो क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये तो लाइक इनफाइनाइट तक पॉजिटिव पॉजिटिव ही चला जाएगा, ये नेगेटिव होने वाला है एंड पे, तो इस पे फोकस करो. दिस इज 1,111, है ना. तो अगेन ये एपी है तुम्हारा विद द फर्स्ट टर्म दिस, लास्ट टर्म 0 के आसपास होना चाहिए, है ना. लास्ट टर्म 0 के आसपास होना चाहिए, -9 के साथ, n-1 9. सो दिस इज लाइक, या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो 120 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर. सो दिस इज 9, 13 9 जा 117, ठीक है. तो n इक्वल्स टू 14, सो देयर विल बी 14 सॉल्यूशन फॉर दिस, 14 पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन. I hope now you have learned how to solve these equations. So if we check this equation 13.3, okay, so this is your homework. Let me know your answer. Find the solution of this equation. Find the solution of given equation such that x, y are natural numbers. X and y are natural numbers. ठीक है. So let me know your answer in the comment section with slide number, that is it. slide number के साथ मुझे अपना आंसर कमेंट में बताना. अच्छा, अब देखो दूसरे टाइप ऑफ, अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए दैट वाज जनरल फॉर्म, जहां पर a और b वाज नॉट मल्टीपल ऑफ c, लाइक इनमें कोई भी कॉमन नहीं था. देखो इससे ये भी डिवाइड नहीं हो रहा था, 8 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा. ये वाला केस देखो, इसमें देखो 30 तुम्हारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है. अब इसमें
तो क्वेश्चन तुम्हारा एक तो होल इंटीजर्स फाइंड करो, होल नंबर फाइंड करो और पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करो। दीज आर द टू क्वेश्चंस। अगेन ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो दिस इज एक्स पे 10 आएगा और तुम्हारा वाई पे 6 आएगा। सो दिस इज द ग्राफ। क्वेश्चन वही बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिमिट है, बाकी तो इनफाइनाइट है ना। नाउ फॉर दिस, अगर मैं इसका तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन लाइक एक तो जो अभी किया हमने वो कर सकते हो, ऐसे अगर करोगे सो योर फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी लाइक इसकी वैल्यू 6 कर दो, इसकी वैल्यू 0 कर दो, या फिर इसकी वैल्यू 0 कर दो, इसकी वैल्यू 10 कर दो। इन दो में से कोई भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो डायरेक्टली यू कैन डू लाइक एक तो चीज पहले चेक कर लो कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है ना। फर्स्ट स्टेप इज दैट इनका HCF 1 है, तो फाइन वी कैन गो, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लाइक 30 डिवाइडेड बाय 15, 30 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। इसके मल्टीपल से डिवाइड करना है इस नंबर को, n को डिवाइड बाय AB प्लस 1 विल बी योर होल नंबर्स। सॉल्यूशन तुम्हारा होगा होल नंबर का। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर इसके होल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, होल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन सच दैट x एंड y आर होल नंबर्स। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, n अपॉन AB, अगर इक्वेशन तुम्हारी है ax प्लस by इक्वल्स टू n, so solution will be n divided by a into b plus 1 and your positive integers will be, अभी मैं तुम्हें चेक भी करा दूंगा, पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी n अपॉन a into b माइनस 1, ठीक है। अगर दोनों मल्टीपल होंगे, देखो दोनों मल्टीपल है, अगर दोनों मल्टीपल होंगे तो n अपॉन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं पहले सॉल्यूशन। हम पहले मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं और फिर फॉर्मूला से मैच करते हैं कि सेम आंसर आ रहा है। अगर फॉर्मूला से निकालो तो 30 डिवाइडेड बाय 15 एंड प्लस 1, तो दैट इज 3 सॉल्यूशंस। इसके 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर हम जनरल अप्रोच से करें जो अभी तक करते आ रहे थे, तो दिस इज लाइक अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो दैट इज 10। अब ये 5 से इसको मैं डिक्रीज करूं, क्योंकि अगर इसको डिक्रीज करूंगा विल गेट द नेगेटिव सॉल्यूशन दैट वी डोंट नीड। इसको अगर मैं 5 से डिक्रीज करूं तो 5, और फिर 5 से करूं तो 0, एंड दिस इज 3 और 6। इसके बाद करोगे नेगेटिव आ जाएगा, इसके बाद करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो देर आर 3 होल नंबर सॉल्यूशन, ये होल नंबर है। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात करूं तो 30 बाई 15 माइनस 1 दैट इज कितना आ जाएगा, 1। तो देखो 1 ही है ना, ये तो 0 है, 0 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, 0 होल नंबर में आता है। तो दिस इज द वे यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ दिस क्वेश्चन, सो 3x प्लस 9y, एंड अगेन आई एम टेलिंग बी केयरफुल, ये मिस्टेक होती है, वी डोंट सी, है ना, हम जल्दीबाजी में चेक नहीं करते हैं। ये जरूर देखो, ये देखो इनका HCF 1 नहीं है, इनका HCF 1 नहीं है। सो व्हाट विल डू, लेट्स ट्राई टू मेक इट 1। अब 1 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नाउ इफ यू चेक इट हियर, लाइक दिस इज x प्लस 3। अब ये जो मैंने बताया तुम्हें, यहां पर दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, दोनों का मल्टीपल। इसमें देखो क्या एक का मल्टीपल है, इसमें देखो एक का मल्टीपल है। तो व्हाट वी कैन डू, लाइक 23 और ये 0, ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इसके बाद चाहो तो AP से कर सकते हो, है ना, लाइक अगर AP से करें तो 23 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा, प्लस 1, 23 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर, जो इसका इंटीजर आएगा। अगर ये चीज तुम मैच करो, लाइक 23 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस 1, यही तो सॉल्यूशन था होल इंटीजर का, यही तो सॉल्यूशन था, है ना। अब यहां पर अगर चेक करो, हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं नॉर्मल तरीके से। 23 है तो इसके बाद आएगा 20, और लाइक चलो फाइंड कर लेते हैं ना। 20 आएगा, फिर आएगा 17, फिर आएगा 14, फिर आएगा 11, फिर आएगा 8, 5, 2। तो कितने सॉल्यूशन है यहाँ पर अगर देखो तो लाइक आ रहा है 3, 7 प्लस 1 8 आ रहा है। यहाँ से देखो 3, 3, 6, 2, 8 आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गए तुम्हारे होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर होंगे 23/3, जस्ट इतने होंगे, -1 करने की जरूरत, एक मिनट, इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है।
जस्ट इतने ही होंगे, 23/3 तो डेट इज 7। चेक कर लो, अगर इसको 2 पुट करोगे तो इसको 7 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिकॉज क्योंकि ये जो नंबर है ये एक का ही मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल ऑफ ओनली 1। अगर सिर्फ एक का मल्टीपल है तो एक ही होल इंटीजर सॉल्यूशन हो, एक जीरो वाला एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, है ना। तो इसीलिए सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, +1 ऑलरेडी हमने ये अलग कर दिया तो उतना ही रहेगा। तो 23/3 दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। तो आई हैव टोल्ड यू जहां पर लाइक दिस वाज नॉट मल्टीपल, है ना, कोई भी ए बी में से कोई भी सी का मल्टीपल नहीं था। देन अगर दोनों मल्टीपल हैं डायरेक्टली यू कैन डू दिस वे। अगर एक मल्टीपल है तो अगेन तरीका वही है तुम्हारा, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है। अगर एक मल्टीपल है तो वही करना है 23, सेम जो पीछे किया ये मेथड रहेगा, बट इसमें इंटीजर वैल्यू लेना होगा, इंटीजर वैल्यू लेना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम्हें ये निकालना हो, ये तो हमने होल नंबर निकाला, केयरफुल रहना है पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में -1 नहीं करोगे, यहाँ पर हमने -1 किया है क्योंकि यहाँ पर दो तुम्हें हटाने सॉल्यूशंस, है ना, दो जीरो वाले सॉल्यूशन। देखो ये जीरो वाला ये, बट यहाँ पर जीरो वाला एक ही सॉल्यूशन है, होल नंबर वाला यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है, तो वी डोंट नीड टू रिमूव दैट। ओके, इसको सॉल्व करना है जैसे बड़ा नंबर है। सो 5x + 12y। अब इन दोनों का देखो HCF 1 है, आई थिंक HCF इज 1, सो HCF इज 1। सो हाउ हाउ विल फिगर आउट। अब देखो एक का मल्टीपल है, एक का मल्टीपल है, सो व्हाट आई विल डू 10,000 डिवाइडेड बाय 12 × 5 एंड होल नंबर्स पहले निकालते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन सच दैट x एंड y आर होल नंबर्स +1। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। सो लेट्स चेक आउट। सो दिस इज 60, like 6,000 upon +1, so this is 16,696 or 6, so 166.66 आएगा, तो that is 167, so your answer will be 167। अगर तुम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करोगे तो कितना होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 166। ओके, जस्ट लाइक सेम यही आंसर हो जाएगा। वहां पर क्या होता था, -1 होता था। अगर तुम ऐसा देखो लाइक यहाँ पर जैसे होल नंबर x आता है तो पॉजिटिव इंटीजर विल बी x - 1, एंड अगर जब दोनों मल्टीपल होते हैं इस केस में अगर होल इंटीजर तुम्हारा x आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी x - 2, बिकॉज यहाँ पर जीरो वाले सॉल्यूशन दो होते हैं और यहाँ पर जीरो वाला सॉल्यूशन एक होता है। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज एक का मल्टीपल है तो एक ही तो जीरो बनेगा, है ना। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क। Solve this and let me know your answer in the comment section. This is your slide number. Let me know your answer with the slide number in the comment section. बताना क्या है तुम्हें, you have to figure out positive integers. Find the number of positive integers. Positive integers, find the number of solution of the given equation such that x and y are positive integers. Question clear है? Just let me know your answer in the comment section with slide number. Find the minimum value of k if 3x + 5y k has positive integer solution for x and y। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, डेट इज लाइक अगर तुम्हारा इक्वेशन है सपोज ax + by = k, you need to find the value of minimum value of k such that x such that this has n solutions, such that this equation has n solutions, n positive integer solution for x and y। So formula for k will be a into b n - 1 plus a plus b। So for this equation solution will be, value of k will be 3 × 5 into 5 - 1 plus 3 plus 5, that is 15 into 4, that is 60, plus 8, that is 68। So value of k will be 68 such that this equation have 5 positive integer solution of x and y। So find the minimum value of k। So solve this question and let me know your answer in the comment section with the slide number 14। Same question है, just value change है। अब देखो हमने पॉजिटिव होल इंटीजर्स निकाली, पॉजिटिव इंटीजर वो सब निकाली। अब देखो कंडीशन बेस्ड है, दिस इज लाइक सम स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2x + y = 40 such that x is less than equals to y, x is less than equals to y।
एक्स की वैल्यू वाई से छोटी या वाई के बराबर होनी चाहिए. सो फर्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन वेयर एक्स इक्वल्स टू 1. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन वेयर एक्स इक्वल टू 1. अच्छा, फर्स्ट स्टेप चेक कर लो, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों का लाइक HCF 1 है, कोफिशिएंट्स का एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स का HCF 1 है. ठीक है, अब x इक्वल टू वाई अगर मैं पुट कर देता हूँ तो डेट इज 3x इक्वल्स टू, यही हो जाएगा ना, लाइक 3x इक्वल्स टू 40. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल केस है ना. x और y इक्वल नहीं हो सकते, x और y इक्वल नहीं हो सकते, बट क्लोज तो हो सकते हैं. लाइक अगर मैं इससे करूँ 3x 40, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 के अराउंड, 13 के अराउंड आ रही है ना, 13 के अराउंड. तो अगर मैं x की वैल्यू 13 रखूँ तो लाइक दिस इज 13 टू जो 26 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14. क्लोज वैल्यू निकल आएगी, इक्वल तो नहीं है बट क्लोज है. यहाँ पर देखो x छोटा है, x इज लेस देन y. अब अगर मैं यहाँ से लाइक अगर इसको मैं पीछे x को इंक्रीज करूँ तो ये 14 होगा, और ये अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, तो दैट इज 13. इज इट आर नॉट? बट व्हाट वी वांट, लाइक ये 12 होगा, सॉरी 12 होगा, बट हमें ये सिचुएशन चाहिए, वी वांट दिस थिंग. तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको डिक्रीज करते जाओ, इसको इंक्रीज करते जाओ. तो इसको डिक्रीज कहाँ तक कर सकते हो, लाइक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो 0 तक कर सकते हो, उसके नीचे तो नहीं कर सकते है ना. तो अगर 13, तो लाइक अब देखो ये 1 1 से डिक्रीज होगा, 12 आएगा, 11 आएगा, तो ऐसे लास्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो 1 आएगा. तो टोटल कितने सॉल्यूशन इसके, 13. देयर 13 वैल्यूज 1 से 13 तक, फॉर दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y. आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन तुम्हें ऐसे सॉल्व करनी होगी. अब अब ये इक्वेशन तुम्हारा 3 अननोन का है. अच्छा, जैसे मैं तुम्हें अभी सिर्फ इक्वेशंस में बता रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, लाइक नॉट गिवन इन द टर्म ऑफ इक्वेशन, बट एक तुम्हें लाइक पजल टाइप का क्वेश्चन बना के तुम्हें कोई लाइक दे देंगे है ना, उसमें थ्योरी डाल के तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे. चलो इसको पहले मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे. हाउ यू विल डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब तुम्हारे 3 अननोन है, देयर आर 3 अननोन्स एंड 1 इक्वेशन. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 इंक्लूड होगा, होल नंबर तुम्हें सॉल्यूशन निकालने. x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल्स टू 20. जब भी तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन हो, तुम्हें क्या करना है, इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है. x जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है उसकी वैल्यू देखो क्या हो सकती है मैक्सिमम. एक तो z की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट z की वैल्यू 1 हो सकती है, z की वैल्यू 2 हो सकती है, z की वैल्यू 3 हो सकती है. इज इट पॉसिबल? नो, z कैन नॉट हैव पॉजिटिव, z कैन नॉट हैव 3 बिकॉज ये 24 हो जाएगा, एंड दीज वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सारे ऐड ही होंगे. तो दैट्स वाई z के इतनी पॉसिबल वैल्यूज हैं. अब तुम्हें क्या करना है, z 0 जब है, when z is 0, then your equation will be x plus 3y equals to 20. इसके सारे सॉल्यूशंस फाइंड करो, इसके सारे सॉल्यूशंस होल इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करो. कैसे फाइंड करेंगे, एक का मल्टीपल है, देखो अगर एक का मल्टीपल है तो 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दिस विल गिव यू द होल नंबर सॉल्यूशन या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस. तो दिस इज 6, तो 6 प्लस 1 7. तो व्हेन z इक्वल्स टू 0, देयर आर 7 सॉल्यूशंस पॉसिबल, 7 सॉल्यूशन पॉसिबल है. अब z इक्वल्स टू जब 1 है, z इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 3y एंड 20 माइनस 8 आएगा, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. अब देखो 12 दोनों मल्टीपल है, दोनों मल्टीपल है, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दैट इज 5. जब ये 1 है तब 5 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. देखो देखने में क्वेश्चन लेंदी लग रहा है बट कितनी आसानी से हो जा रहा है अगर हमें सही अप्रोच पता है. अगर 2 पुट कर दें इसे, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 20 माइनस 16 आ जाएगा, दैट इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 4. अब ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है ना, तो लाइक फर्स्ट सॉल्यूशन देख ले, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा 4 और 0 हो सकता है, 4 0. अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, दिस इज 4, वह एक का मल्टीपल है ना, एक का मल्टीपल है. अगर एक का मल्टीपल है तो ऐसे कर ले 4/3 प्लस 1, दिस इज 1, 2 सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर वैसे भी देखो तो 2 सॉल्यूशन आएगा, ये 1 और 1, ये 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं तुम्हारे.
तो ये 2 सॉल्यूशंस हो गए। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए? 7 to 9 + 14, तो 14 इज योर आंसर। So there are 14 non-integers, non-negative integer solutions possible for this given equation. I hope this is clear. Similarly, this is your homework. Solve and let me know your answer in the comment section. And also, अब इसको करते हैं फाइन। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच तुम्हें करना है। अ पर्सन हैज अ कॉइन्स ऑफ 1n, 3n and 7n. In how many ways he can pay? Can he pay a bill of 40n? तो एन तुम्हारा लाइक रुपीज है ना, लाइक तो लाइक 1n मनी का डिनोमिनेशन है। तो 1n लेट्स से दैट इज x एंड 3n y एंड 7n दैट इज z, और ये टोटल 40 है ना। लाइक कॉइन जो तुम्हारे हैं वो 1n है, 3n है और 7n के कॉइन है। वी डोंट नो हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन ही पे अ बिल ऑफ 40 का बिल उसे पे करना है। तो मैंने सपोज किया कि 1n के x कॉइन हो, 3n के y और 7n के z कॉइन, ठीक है। और यहाँ पर कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड होगी। डोंट नीड टू वरी अबाउट कितने कॉइन मेरे पास हैं या नहीं है। अगेन इससे सॉल्व करोगे जो हाईएस्ट है, तो z की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मेंशन कर सकते थे कि लाइक हमें हर कॉइन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू यूज ऑल द कॉइन्स। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक कॉइन का यूज करके मैं पे कर दूं। वी हैव टू यूज ऑल द कॉइन्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इंक्लूड कर दे रहा हूँ। वैसे तुम वो भी निकाल सकते हो, होल नंबर्स का भी निकाल सकते हो। ये कोई भी कॉइन यूज करके पे कर दो, लाइक सारे 1 के 40n यूज करके 40n पे कर दो। ऐसे करके भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दैट इज अप टू, मतलब वो वाला तुम सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन मुझे बताना कि जब तुम लाइक यू कैन यूज 0, यू कैन यूज लाइक 0 7n, 7n को तुम 0 यूज कर सकते हो, 3n को 0 यूज कर सकते हो, मतलब होल नंबर्स में कॉइन यूज कर सकते हो। मैं भी जो सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मिनिमम तुम्हें एक कॉइन सबका यूज करना पड़ेगा। मिनिमम ईच कॉइन, ईच डिनोमिनेशन नीड टू बी यूज्ड, ईच कॉइन्स नीड टू बी यूज्ड, ठीक है। ये कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि तुम्हें लाइक 7n का एक कॉइन यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइक तुमने सारा अमाउंट जो है 1n से सिर्फ पे कर दिया, ठीक है। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो मैं जस्ट तुम्हें, बिकॉज हमने लाइक होल नंबर का पीछे क्वेश्चन कर लिया, सो दैट्स आई जस्ट वांट कि पॉजिटिव इंटीजर का हम यहाँ पर डिस्कस करें एग्जांपल। तो दिस इज 40। अब जेड का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, बिकॉज ये कंडीशन है। जेड मिनिमम एक तो यूज करना ही पड़ेगा। तो जेड का वैल्यू 1 हो सकता है, जेड का वैल्यू 2 हो सकता है, जेड का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 6 पे 42 हो जाएगा। तो अगर मैं जेड का वैल्यू 1 रखता हूँ तो x + 3y इक्वल्स टू 40 - 7 है ना, तो दैट इज 33। दोनों का मल्टीपल है, तो लाइक 33 डिवाइडेड बाय 3 -1। पॉजिटिव इंटीजर निकालने और दोनों मल्टीपल है तो -1 करते, तो दैट इज 10। तो इसके लिए 10 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर मैं जेड को 2 पुट कर दूं तो x + 3y दैट इज कितना? 14, दैट इज 26। एक मल्टीपल है, 1 देखो मल्टीपल है इसका, है ना। 26 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द, हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि एक मल्टीपल होता है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर होल वाला एक ही सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज 3 8 8 पॉइंट समथिंग, तो 8, तो इसके लिए 8 आएगा। अगर मैं इसको 3 पुट करूँ तो 3y। अगर मैं कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ या इन चीज में कहीं पर मैं मिस्टेक कर दूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x + 3y दैट इज 19। अगेन ये 1 का मल्टीपल है, तो 19 3 एंड दैट इज 6। x + 3y अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये 12 आएगा। तो दोनों का मल्टीपल है, 4 डिवाइड बाय 3, तो -1 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मल्टीपल है। 4 - 1 3।
अब x प्लस 3y अगर मैं 5 पुट करूँ तो 35, तो ये 5 आएगा। एंड 5 के लिए तो ऐसे ही चेक कर सकते हो, देखो अगर 5 0 एंड 2 1, दो ही सॉल्यूशन होंगे ना, दो नहीं एक सॉल्यूशन होगा, जीरो वाले इंक्लूड नहीं कर सकते, तो एक ही सॉल्यूशन है, दिस इज 1। सो ऐड ऑल दिस, so this is 18, 18, 10, 28. So 28 is your answer here. So there are 28 ways in which a person can pay a bill of 40 N using minimum like each of the coins है ना, मिनिमम एक कॉइन यूज करना है सबका, 1 N का भी, 3 N का भी, 7 N का, ऐसा नहीं कि लाइक तुमने एक कॉइन जीरो यूज किया। ओके, दूसरा सिचुएशन जो है होल नंबर वाला, वो मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में स्लाइड नंबर के साथ बताना। ओके, नाउ ये हमने सारे ये प्लस वाले फॉर्म डिस्कस कर लिए, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई, ये फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसमें हमने तुम्हारा ये फॉर्म भी डिस्कस कर लिया जिसमें 3 नोन्स आ जाते हैं। ओके, तो हो सकता है एग्जाम में लाइक बहुत बार ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के तुम्हें दिए जाएं, बट आई होप यू विल बी एबल टू फिगर आउट और ऐसे सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। इफ यू चेक दिस इक्वेशन, दैट इज 2x माइनस 3y 30। स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब अगर ऐसे देखो लाइक 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज करूं, अगर मैं इसको 8 करूं, तो इसको 3 मेंटेन करने के लिए मुझे इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तो डिफरेंस 3 मेंटेन करने के लिए मुझे इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा, लाइक सॉरी 3, इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। वहां पर क्या हो रहा था, ए एक्स प्लस बी वाई में एक इंक्रीज कर रहा था तो दूसरा डिक्रीज कर रहा था। यहां पर दोनों सेम करेंगे, लाइक इफ एक्स इज इंक्रीजिंग वाई विल ऑल्सो इंक्रीज, if y is decreasing x will also decrease. First thing, this is clear. And again the situation is same कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, that condition is same. तो इसमें भी अगर इसका हम ग्राफ चेक करें, लेट्स फर्स्ट चेक द ग्राफ, that is 15 and 10 equals to 1. तो x पे 15 आएगा, y पे -10 आएगा, तो दिस इज द ग्राफ, तो इसके देखो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट। ये लाइन तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसके कोई ऐसे रेंज नहीं है, लिमिटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो एक सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, एक सॉल्यूशन निगेटिव होगा, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर विच एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट उसके लिए भी देखो आगे इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि होल इंटीजर फाइंड करो या पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसी दी होंगी, जैसे हमने लास्ट स्पेसिफिक कंडीशन वाले इसके क्वेश्चन होंगे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, दिस वन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पर स्पेसिफिक कंडीशंस दी होंगी, क्योंकि इसमें होल इंटीजर और उसकी रेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है बट इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट पॉसिबल है, सो दैट्स वाई देयर कैन नॉट बी अ लिमिटेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिमिटेशन दी होगी एंड एवरीथिंग इज सेम। सॉल्व देखो कैसे करोगे, फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वैसे ही 2x माइनस 3 है, ये तो सिंपल है। फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 3y दैट इज x डिवाइड बाय 30 प्लस 3y एंड दिस इज 15 प्लस 3y बाई 2। तो y को 2 पुट कर दो, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो अगर फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाता है, वैसे भी फर्स्ट सॉल्यूशन तो यहाँ पर लाइक आसानी से निकल आएगा। अगर मैं लाइक इसको 15 कर दूँ और इसको 0 पुट कर दूँ, है ना, 15 और 0 पुट कर दूं, सही है। अब देखो ये अगर मैं इंक्रीज कराऊंगा, अगर मैं इसे इंक्रीज कराता हूं, सो दिस विल इंक्रीज लाइक 18 हो जाएगा, और इसको अगर मैं इंक्रीज कराऊं तो दैट इज 2, तो ये भी आ रहा है 18 टू 36, 36 माइनस 6 दैट इज 30। तो ये ऐसे दोनों इंक्रीज करते जाएंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे ना, इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन पॉसिबल। सो दिस इज द वे, सेम वे सॉल्यूशन फिगर आउट करने का, बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे तुम्हारी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ होंगे, ठीक है। वैसा नहीं हो सकता कि फाइंड द होल नंबर्स, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द केस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 11y इक्वल्स टू 43 वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू सच दैट x की रेंज है 16 से 40, है ना, रेंज x की दे दी है तुम्हें, तो x की रेंज दी है, तो लेट्स
पहले तो फर्स्ट सॉल्यूशन रीच करते हैं, पहले तो फर्स्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। x इक्वल्स टू 43 11y अपॉन 13, तो दिस इज 3 39, that is 4 plus 11 y upon 13. Now let's just do the hit and try. तो अगर मैं 0 पुट करूँ नहीं आएगा, अगर 2 पुट करूँ मैं, इफ आई पुट 2 that is 20 to 26, है ना, 2 पे आ जाएगा। So y equals to 2, y equals to 2 is the solution। अगर y का वैल्यू 2 आएगा तो दिस इज 26 टू, इसका वैल्यू 5 आएगा। 13 5 65, 65 माइनस 22 दैट इज 43, राइट। दिस द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड वी नीड x का रेंज 16 से 40 हो, तो x को इंक्रीज कर दो, दैट इज 16, है ना, दैट इज 16। और x को अब ये कितने से 11 से इंक्रीज करेगा, 11 से इंक्रीज करेगा, दैट इज 27, दैट इज 38 एंड इसके बाद कितना आ जाएगा 49। तो 2 सॉल्यूशंस है ना, ये 2 सॉल्यूशन तुम्हारे पॉसिबल है। x की अगर ये रेंज होगी, so these are the 2 solutions that are possible. I hope this is clear. अदरवाइज यहाँ पर AP भी लगा सकते हो कि लाइक फर्स्ट जो तुम्हारा टर्म है वो 16 है, फर्स्ट टर्म 16 है, लास्ट टर्म 40 ले लो, लिमिटेड जो है, लिमिट है जो, प्लस अगर लाइक ज़्यादा नंबर हो, यहाँ पर तो काउंट कर लिया हमने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर केस में हम काउंट कर पाएँ। n-1 और d इज योर 11, तो दैट इज 16 कर दोगे तो 24 बाई 11 प्लस 1, तो लाइक 11 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये 3 आ रहा है। 3 जब आ रहा है जब 40 को हमने अज्यूम किया लास्ट वन, है ना, उसके पास 40, बट हमें 40 इंक्लूड नहीं करना है, हमें 40 से कम में चाहिए, तो दैट्स वाई 2 विल बी योर आंसर। ओके, 40 को हमें इंक्लूड नहीं करना ना, यहाँ पर क्या हमने 40 को लास्ट अज्यूम किया, 40 को हमने लिमिट लिया, तो उससे पहले हमें चाहिए, तो उससे एक कम में चाहिए। ओके, सो दिस वे यू विल डील विद द नेगेटिव टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, सॉल्व करना, दिस इज अ क्वाइट गुड वन, है ना। आई जस्ट वांट टू सी कितने लोग इस क्वेश्चन को सोच पाओगे, सो लेट मी नो योर आंसर। आई डोंट नो लाइक तुम और कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना करो इस पेपर पर, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। सो लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी मुझे बताओ। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो मुझे इसका आंसर बताना। दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। ओके, नाउ लेट्स डू दीज 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये। ऐसे क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आ सकते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट that cannot be paid using denomination 11 and 23 and how many amounts that can be paid। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि लाइक 11 और 23 ये दोनों यूज करके 11 एंड 23 डिनोमिनेशन के कॉइन्स है सपोज तुम्हारे पास, लाइक जैसे तुम्हारे पास कॉइन्स होते हैं। मैं तुम्हें पहले छोटे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स यू हैव अ कॉइन ऑफ 2 and 5, तुम्हारे पास 2 और 5 के कॉइन है, ठीक है, 2 और 5 के कॉइन्स हैं। एंड क्वेश्चन ये है कि लाइक कि मैक्सिमम अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है दैट यू कैन नॉट पे विद दीज कॉइन्स। लाइक देखो 1 पे नहीं कर सकते ना, 1 रुपीज़ किसी को पे करना हो, यू कैन नॉट पे यूजिंग 5 and 2। 2 कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते ना पे, 4 कर सकते हो। एंड और क्या कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, एंड 8 कर सकते हो। क्या 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसे करके फिगर आउट करोगे, बट एक्चुअल में कैसे फाइंड करें, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट। तो अभी तो 3 लग रहा है मुझे, अब देखो मैक्सिमम अमाउंट कैसे निकालोगे। 5 into 2 minus 2 into 5 that is 10 minus 7 that is 3। 3 आ रहा है देखो, 3 is the maximum amount that you cannot pay with the denomination 2 and 5। तो 3 बड़ा नंबर है that you cannot pay। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। अब 11 and 23 का कॉइन है, 11 and 23 का मैक्सिमम अमाउंट तुम्हें बताना है क्या नहीं पे कर सकते। जैसे देखो 1 नहीं पे कर सकते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
है ना, ये सब पे नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम अमाउंट क्या है डैट यू कैन नॉट पे, तो उसको देखो कैसे करोगे, 11 इंटू 23 माइनस 11 माइनस 23, दैट इज 253 माइनस 34, दैट इज 9 1 219. So 219 is the amount that you cannot pay with 11 and 23. 219 का मैक्सिमम अमाउंट है जो 11 और 23 से पे नहीं किया जा सकता. अगेन दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूजिंग अगेन इन बाइनोमियल. बाइनोमियल जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर भी इसको एक बार यूज करेंगे, तो इसको याद कर लो, ठीक है. अलजेब्रा में अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जिनका पीछे की थ्योरी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है. डोंट नीड टू नो हाउ दिस हैव बीन ड्राइव्ड, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज जो कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ तुम्हें. तो इसका क्या होगा, m इंटू एन, तो दो जैसे डिनोमिनेशन है तुम्हारा, दिस विल बी योर आंसर. इसको याद रखो, मैक्सिमम अमाउंट ये है डैट यू कैन नॉट पे. अब हाउ मैनी अमाउंट, क्वेश्चन ये हाउ मैनी अमाउंट दैट यू कैन नॉट पे. तो अगेन मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ. 2 और 5 जैसे था, तो तुम क्या नहीं पे कर सकते, 1 नहीं पे कर सकते और 3 नहीं पे कर सकते. मैक्सिमम अमाउंट है 3, उसके बाद तो सारे पे कर सकते हो. तो कितने अमाउंट नहीं पे कर सकते, यू कैन नॉट पे 2 अमाउंट्स. तुम ये दो अमाउंट नहीं पे कर सकते, 1 और 3. यू कैन नॉट पे 1 एंड 3. ये दो अमाउंट है, एक तो 1 रुपीज़ का अमाउंट नहीं पे कर सकते और 3 रुपीज़ का अमाउंट पे नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये कैसे फिगर आउट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है m-1 n-1 बाई 2. एम एन क्या है तुम्हारा डिनोमिनेशन है, लाइक m इज 11 और n इज 23. तो अगर ये वैल्यू पुट करें 2, तो दैट इज 2 माइनस 1, तो दैट इज 4 बाई 2 आर. दीज आर द टू अमाउंट्स. इसके लिए क्या आंसर होगा, 11 माइनस 1, 23 माइनस 1 बाई 2. तो दिस इज कितना, 10 इंटू 22 बाई 2, दैट इज कितना, 11 110. सो 110 इज योर आंसर. सो देयर आर 110 इंटीजर एंड 10 अमाउंट्स, 110 अमाउंट्स दैट यू कैन नॉट पे using 11 and 23 as denomination. I hope this is clear. Note down these two formulas. And one more thing, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए. जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए. उन्हीं का ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. एग्जाम में उन्हीं का आएगा, ठीक है. उन्हीं का सॉल्व कर सकते हो जिनका HCF 1 है. लाइक 2 और 4 का ऐसे सॉल्व नहीं होगा, 2 और 4 का ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. आई होप दिस यू अंडरस्टूड. सो दिस वॉज अबाउट 2 डिनोमिनेशन. 2 कॉइन्स हैं, 2 टाइप ऑफ कॉइन्स हैं. और ये है तुम्हारा व्हेन देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, जब तुम्हारे पास 3 कॉइन्स हैं. तो लाइक इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर 3 डिनोमिनेशंस, 3 कॉइन्स दिए हो, 3 टाइप ऑफ कॉइन्स दिए हो, बहुत रेयर एग्जाम में आएगा, बट स्टिल लाइक अगर ये आ जाता है तो हाउ विल सॉल्व दिस, लेट्स सी. तो इसके अप्रोच देखो कैसे करेंगे. 6 9 20. फर्स्ट थिंग, चेक कि इनका HCF सबका 1 होना चाहिए. इन तीनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए, तीनों आपस में को प्राइम होने चाहिए. देन वी हैव टू फिगर आउट वन थिंग. इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है. फॉर्मूला विल बी लाइक सपोज n अमाउंट है तुम्हारा, फॉर्मूला विल बी LCM ऑफ n कॉमा m प्लस LCM ऑफ p कॉमा m माइनस n माइनस m माइनस p, ठीक है. अब यहां पर देखो हमें ये फाइंड करना है कि m कौन सा होगा नंबर. वी हैव टू फर्स्ट फाइंड, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि m कौन सा नंबर होगा जिनका दोनों में कॉमन रखना है. उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू चेक वन थिंग. एक चीज यहां पर चेक करनी होगी. अगर मैं इसको लिखता हूं लाइक एलसीएम लेता हूं मैं 6 और 9 का, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 20. मॉड का मतलब पता हो तुम्हें, ये 0 आना चाहिए. अगर ये 0 आए तो ये m हो जाएगा, ठीक है. दिस विल बी m. दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करो, सारे कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लो. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज दिस. जो बच जाएगा, ठीक है. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन विल बी 26 डिवाइडेड बाय 9. इन 3 कॉम्बिनेशन तुम्हें चेक करने हैं जिसमें ये 0 आ जाएगा, जो ये होल्ड करेगा, ठीक है. अगर इसको देखो तो इसका 18/20 इसका 0 नहीं आएगा, तो दिस डजंट होल्ड. तो m विल नॉट बी 20. इसका चेक करो, इसका एलसीएम आएगा 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 30. 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो दिस होल्ड्स. ये चेक करो ये क्या होल्ड कर रहे हैं, 23 60 60/9, अगेन रिमाइंडर नॉट 0.
तो हमारा m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो गया। एलसीएम ऑफ n तुम्हारा क्या है, n कोई भी हो सकता है, m इंपॉर्टेंट है, m इज 6 और n 20, कैसे भी इसको ले सकते हैं। 6, 9 एंड that is 6, 20 and -6 -9 -20, sorry this is -20। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 9 6 का that is 9 to 18 और 6 और 20 का होगा तुम्हारा 60 and this is 15 -35, so this is 78 -35, 78 -35, so 35 35 35 8 that is 43 I think, सही है कैलकुलेशन, 43। So 43 is the answer. 43 is the maximum amount that cannot be paid using these denomination, using 6 9 9 20। 43 सबसे बड़ा अमाउंट है that you cannot pay using these denominations। Okay, so this was all about these type of equations। अब next में जो remaining type of special equations हैं next session में वो discuss करेंगे। So I hope you guys like this session। Make sure you like and join this Telegram channel as well as group, दोनों का link description में है। If you have any doubts you can share your doubts here and you can discuss in the group। Subscribe to this channel and share with your friends who are preparing for CAT and other examinations। Join the Facebook group also। So that's it for today's session, let's see you in the next session।